Hello students and welcome back to my channel. My name is Khushbu Jain and Vedic Maths Master is my channel name. So in the today's video, students we will basically discuss the number system. आप जितने भी स्टूडेंट्स 9th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं उन सब के लिए जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के जितने भी आप बुक में आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं विद एग्जांपल्स, नंबर सिस्टम से हम स्टार्ट करेंगे. बेसिकली नंबर सिस्टम में आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे कि किस तरीके से इंट्रोडक्शन होता है, किस तरीके से आप उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो. तो इस चैनल पे आपको बेसिकली 9th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे. और कोई भी क्वेरी अगर आपकी होती है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, चाहे वो मनजीत सिंह से रिलेटेड हो, चाहे आर टी शर्मा हो या सैम्पल पेपर हो. कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी अगर आपकी है तो आप इस पे कमेंट में लिख सकते हैं. आई विल गिव यू आंसर्स. Okay, and basically now we'll start and discuss the chapter first, exercise 1.1 number system, and some questions are here. See, before start I just want to say my channel name is Vedic Maths Mastery, as I already displayed here. And now along with the exercises, along with the 9th maths, I will teach you basically how the Vedic maths work. Basically how you can easily play with numbers, how can you easily calculate more faster than your regular maths calculations. Basically Vedic maths teaches you how you can easily calculate fast, and it also maintain accuracy, and it also basically save your timings in your exams. So I already made so many videos on Vedic maths, you can check out. But along with the maths I will teach you small tricks so you can easily multiply with higher digits in just within 5 and 2 seconds. So it's a very unique method, or already using in competitive exams as well. As you all know that you are in 9th standard, I am taking classes, so I know that there is a very high demand of 9 students, 10 students and 11 students that we want to learn Vedic maths. So there is a very benefit for you if you are giving your quality time to my channel and watch these videos. So you will definitely learn Vedic maths along with this as well. So just start the number system. Okay, I will just give you a very small introduction of the number system. Basically some students don't know about and have confusions in number system. What are the even numbers, what are the odd numbers, what are the integers, whole numbers and rational numbers. Some students make confusion in this, so we'll just discuss even numbers. Even numbers वो numbers होते हैं basically जो हमारे 0, 2, 4, 6 and 8 and so on. यानी कि 10 होगा तो 10 में आपको पता है 10 में आपका ये जो वंस प्लेस है 0 आ गया, जैसे कि यहाँ पे डिस्प्लेड है. फिर आपका 12 होगा तो 2, 14 होगा तो 4, 16 होगा तो 6 एंड 18 होगा तो 8 एंड सो ऑन. इस तरीके से आपके डिजिट चलते हैं. तो ये आपके इवन नंबर्स होते हैं, इसीलिए सिर्फ इसको यहाँ तक लिखा जाता है, क्योंकि अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो वंस प्लेस में सबके यही नंबर्स आते हैं. तो मोर देन सफिशिएंट टू लर्न बेसिकली इवन नंबर्स ही हैं. सो जस्ट मूव टू ऑड नंबर्स. ऑड नंबर्स हमारे होते हैं जैसे 1, 3, 5, 7 एंड 9. तो बेसिकली आप इसमें भी 11 लिखोगे तो वंस नंबर आपका 11 ही आ गया. उसके बाद 13, उसके बाद 15 एंड उसके बाद 17 एंड उसके बाद 19. तो आपका ये आ गया. इस तरीके से आप सिर्फ ये लर्न करते हैं, ये आपको पता होता है कि 1 से लेकर एक नंबर को आप छोड़ते हैं, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9. इस तरीके से आपके odd numbers बनते हैं. Now move to integers. Do you know the integers? Have you learned about the basically number line? Have you seen this number line? Like यहाँ पर आपको पता होगा कि सारे पॉजिटिव आते हैं 1, 2, 3, 4, राइट. एंड देन यहाँ पर आपका जो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट होता है यहाँ पर सारे आपके नेगेटिव में आते हैं. तो यही सारे आपके इंटीजर्स होते हैं. नंबर लाइन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैथ्स एंड हम नंबर लाइन को बहुत अच्छे से समझेंगे. बट यहाँ पर इंटीजर्स मैं आपको सिंपली बताती कि नेगेटिव और पॉजिटिव. आप ये कह सकते हैं ये बेसिकली पॉजिटिव है यानी कि प्लस, ये आपका नेगेटिव है यानी कि माइनस. तो नेगेटिव और पॉजिटिव को दोनों को मिलाकर के आपके क्या बन जाते हैं, इंटीजर्स बन जाते हैं. ओके, सो जस्ट मूव टू नेक्स्ट नंबर. मूव टू नेक्स्ट टॉपिक इज होल नंबर्स. होल का मतलब ही समझ में आ रहा है, जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं. डू यू नो कि होल नंबर 0 से क्यों स्टार्ट होते हैं, होल नंबर ही क्यों बोला जाता है इनको? क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर हम 1 से
अगर स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, यहाँ पर एक टॉपिक रह गया आपका नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स क्योंकि हमारे जो हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे हमारे मतलब 1 से स्टार्ट होने वाले हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। बट होल नंबर्स हमारे होते हैं कि जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5। बेसिकली अगर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर में, तो 9 के बाद आपको क्या चाहिए, 10, 10 में आपको क्या चाहिए, 0 0 0 बेसिकली आपके नेचुरल नंबर्स को या नंबर्स को कंप्लीट करता है। तो कंप्लीट मीन्स होल करता है, तो होल नंबर यानी कि 0 का इन्वेंट हुआ, और 0 बेसिकली इस तरीके से हमारे होल नंबर में 0 से स्टार्ट होता है। आप इसको एक वे में भी लर्न कर सकते हैं। तो 0 1 2 3 4 यानी कि 0 से स्टार्ट होने वाला नंबर होल नंबर, और 1 से स्टार्ट होने वाले हमारे नंबर होते हैं नेचुरल नंबर्स। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, दिस इज द लास्ट टॉपिक, फिर विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 1.1। रैशनल नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जिसको हम डिनोट कर सकते हैं P अपॉन Q से। सिंपल सी बात है, जिसका यानी कि न्यूमरेटर भी होता है और डिनोमिनेटर भी होता है। इट्स अ वेरी सिंपल। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं एक नंबर, जैसे मैं आपको बोलूं 3, तो आप बोलते हैं 3 अपॉन 1। जैसे मैं आपको सिंपली नंबर बोलूं 3 अपॉन 1। अब 3 तो बेसिकली आपने बोला कि ऑड नंबर है, या आप बोल सकते हो कि नेचुरल नंबर दे दिया आपने। बट अगर उसको मैं अपॉन 1 कर दूं तो मैं उसको यानी कि रैशनल नंबर बना सकती हूँ, राइट। ओके, रैशनल नंबर मैं बना सकती हूँ। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा नंबर दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे अपॉन 0 है, तो ये तो आपका रैशनल नंबर नहीं होगा ना, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि P अपॉन Q यानी कि जो आपका एग्जिट करता है, यानी कि नंबर्स एग्जिट करते हैं, वो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं, जिसमें न्यूमरेटर में डिजिट और डिनोमिनेटर में डिजिट होती है। So students, we'll discuss question number first. As you can see here, मैंने यहाँ पर यहाँ पर स्क्रीनशॉट में दे दिया आपको, पिक्चर दे दी है एक्सरसाइज 1.1 की एनसीईआरटी की। आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं क्वेश्चन। So I will just repeat the question and then solve the answer here. Is 0 a rational number? पहली चीज, can you write in the form of P upon Q? क्या आप उसको P upon Q में लिख सकते हैं? पहली। दूसरी चीज, सबसे बेसिकली Q इज नॉट इक्वल टू 0। क्या Q नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है? तो यस। नाउ जैसे आपको मैंने बोला कि Q एक P अपॉन Q अगर हम लेते हैं इज इक्वल टू 0, तो क्या वो रैशनल नंबर है? क्वेश्चन उसने पूछा इज 0 अ रैशनल नंबर? यस, 0 कैन बी अ रैशनल नंबर। कैसे? देखो, मैंने आपको भी बताया 0 अपॉन 1 आप लिख सकते हैं, 0 अपॉन 2 लिख सकते हैं, 0 अपॉन 3 लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं इजीली। इसमें आप नेगेटिव इंटीजर भी यहाँ पर ले सकते हैं। तभी उसने बोला है कि इंटीजर जैसे आपको दिया होगा P एंड Q, और उसके वो 0 भी उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। तो यहाँ पर आप नेगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं, और 0 अपॉन आप अगर 3 या 2 है वट एवर लिखते, तो ये आप देख सकते हैं P अपॉन Q में भी डिनोट हो गया, ठीक है। हालांकि ये 0 अपॉन 1 बेसिकली 0 ही बनेगा आपका, राइट। लेकिन 0.2 तो नहीं, 0.2 भी 0 ही बनेगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है आपका, ठीक है। लेकिन अगर इसने बोले Q इज नॉट इक्वल टू 0, यस, Q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर मैं आपको कोई भी नंबर ऊपर देती हूँ और अपॉन 0 देती हूँ, तो क्या होगा, ये आपका यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि आपका इज इक्वल टू 0 तो आ नहीं रहा। यहाँ पर 0 ऊपर होगा तभी इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पर अगर अपॉन में डिनोमिनेटर में 0 है तो नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका क्वेश्चन है कि यस 0 इज अ रैशनल नंबर, और उसके बाद आप इसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखकर दिखा भी सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखकर दिखा दिया। सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया आपका ये। और उसके बाद उसने बोला है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, यस Q विल नॉट इक्वल टू 0, लाइक आप इसको ये भी करके दिखा सकते हैं, और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो नाउ जस्ट मूव टू सेकंड क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन सेज दैट फाइंड द 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन द 3 एंड 4। तो 3 एंड 4 के बीच में आपको 6 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, ओके। 6 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो जब आप 6 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करेंगे, इसके बहुत सारे तरीके हैं। पहली चीज तो आप इसको क्या करोगे, रैशनल में चेंज कर लोगे। तो इसको हम रैशनल में चेंज करेंगे लाइक दिस, 3 अपॉन 1 एंड 4 अपॉन 1, लाइक दिस। हम P अपॉन Q में ले आए। सेकेंड चीज, 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। देखो, मेरा तरीका यह है कि मैं 6 निकालने तो 7 ले लेती हूँ,
ठीक है। लेकिन आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन मेक श्योर डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम तब आप कंपैरिजन करते हैं। आपने अपने छोटी क्लासेस में देखा होगा, जब ग्रेटर एंड स्मॉलर की बात आती है, तो अगर कौन सा नंबर ग्रेटर एंड स्मॉलर है तो उसमें आप सबसे पहले क्या करते थे, जो डिनोमिनेटर होते हैं उनका एलसीएम लेते थे। तो व्हेन डिनोमिनेटर्स विल बिकम सेम देन यू कैन इजीली कंपेयर एंड फाइंड आउट हाउ, मतलब इनफिनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन दी टू नंबर्स। आप ये भी ध्यान रखिएगा, कितने भी नंबर्स आप निकाल सकते हैं, नो लिमिट। तो 6 है तो आप 7 भी ले सकते हैं, चाहते 10 भी ले सकते हैं। मैं 7 लेकर देख लेती हूँ, 3/1 है, तो मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ऊपर भी 7 से करूंगी। ओके, इसका आंसर यहाँ निकल जाएगा। 4/1 है, इसको भी मैं 7 से ले लेती हूँ, ठीक है। तो 7 3 21 और अपॉन 7, और 7 4 आपका हो जाएगा 28/7. तो नाउ यू कैन सी इन 21 एंड 28 डिनोमिनेटर्स आर सेम। 21 के आगे आप ले सकते हैं 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 रैशनल नंबर्स यू हैव कैन फाइंड आउट। आप चाहें तो यहाँ पे 7 की जगह 8 9 10 वॉट एवर नंबर यू कैन टेक, बट मेरे अकॉर्डिंग जैसे मैं सोचती हूँ कि कई बार क्या होता है, जितने नंबर निकालने उससे एक नंबर आप एक्स्ट्रा लेकर के उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए डिनोमिनेटर से भी और न्यूमिनेटर से, यू कैन फाइंड आउट द आंसर। तो जस्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So students, now this is the third question. Third question you can see, आप स्क्रीनशॉट में भी देख सकते हैं और आप अपने बुक में भी देख सकते हैं कि 5 फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन दी 3 and 5 एंड अपॉन 4/5। तो आपको इसके बीच में 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। सी, पहली चीज तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है। दूसरी चीज आपको यहाँ पर रैशनल नंबर्स में दे रखा है, गिवन है कि रैशनल नंबर्स में गिवन है, तो आपको अपॉन 1 करने की जरूरत नहीं है। तो देयर इज ऑलरेडी इन P/Q फॉर्म। ओके, तो मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब आपको यहाँ पे 5 दे रखे हैं, अब आप चाहे तो सिंपली एक नंबर एक्स्ट्रा लेके 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप चाहे तो उसको 10 से भी कर सकते हैं। तो समटाइम होता है कि 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद में ना बीच का गैप कम आ रहा होता है, जैसे आपको 5 निकालना है, मान लीजिए बीच के गैप 2 ही आ रहे हैं, तो आप उस केस में फिर इसको यहाँ से रब करके ज्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करके ही फाइंड आउट कर सकते हैं इतने रैशनल नंबर जितने इससे फुल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस समय आपको दिखाने के लिए पहले 6 ले लेती हूँ, ठीक है। अब हम इससे देख लेते हैं कि क्या नंबर निकल पाता है। 6 5 30, सबसे पहली बात तो डिनोमिनेटर आपका सेम आ गया। उसके बाद में 6 3 से आपका कितना हो जाएगा 18, और 6 4 से कितना हो जाएगा 24, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं 18 और 24 के बीच में क्या 5 नंबर्स हमारे गिवन आ पा रहे हैं, तो 19/30 एंड 20/30 एंड 21/30, 22/30, 23/30 एंड देन 24 ऑलरेडी दिया हुआ तो ये नहीं लिखेंगे। 1 2 3 4 5। सो नाउ वी हैव ऑलरेडी फाइंड आउट दी 5 रैशनल नंबर्स। नाउ आपको समझ में आ गया होगा कि रैशनल नंबर का मतलब होता है P/Q। तो पहले मैंने 1/1 इसलिए किया था क्योंकि रैशनल में नहीं था गिवन, तो मैंने उसे P/Q में बेसिकली बना लिया था, रैशनल बना लिया था। देन आई हैव फाइंड आउट दी all the मतलब rational numbers, ठीक है। Move to next question. Yes students, now the question says state whether the following statement are true and false. So you have to basically find the true and false. आपको दो चीजें फाइंड आउट करनी है। Give the reasons for your answer, यानी कि आपको सोल्यूशन भी देना है कि बेसिकली अगर ट्रू है तो why it is true, false है तो why it is false. So we'll just discuss part 1. Every natural number is a whole number. सी, पहली बात तो नेचुरल नंबर्स पे आ जाते हैं फटाफट से। नेचुरल नंबर्स जो हमारे होते हैं वो होते हैं 1 से स्टार्ट, वो होते हैं आपके 1 से स्टार्ट। ओके, तो जब आपके 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर्स, आपके 1 से स्टार्ट है, और आपका उसने दूसरा बोला है होल नंबर्स। तो होल नंबर्स जो आपके होते हैं, होल नंबर्स आपके होते हैं बेसिकली 0 से स्टार्ट। तो 0 1 2 3 and 4 and 5 so on. अब basically question says that every natural number is a whole number. Yes, this is true. First of all, this is true. Why this is true? Every natural number is a whole number because natural numbers start from 1, whole numbers start from 0. आप क्या लिखेंगे? Natural number starts from 1, whole number starts from 0. तो whatever number
आपका कोई भी नंबर आ जाए 3, 4, 5, 6 या 1 नंबर ही क्यों ना आ जाए, अब होल नंबर तो वो होगा ही होगा, क्योंकि होल नंबर 1 से तो क्या पहले ही उससे स्टार्ट होता है, 0 से, यानी कि उससे पहले से। तो बाद के जितने भी नंबर है वो तो होल नंबर में ऑलरेडी आएंगे ना। तो इस तरीके से आप टीचर को सॉल्व करके दिखा सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स ये होते हैं, होल नंबर्स ये होते हैं, and all the natural numbers are already come in the whole numbers. So this situation statement is true. So just move to next part. So students, second part says that every integer is a whole number. Say every integer is a whole number. सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर मैम को बताने के लिए, जो एग्जामिनर होता है उसको ये बताने के लिए कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो ऑल द इंटीजर्स ऑफ, यानी कि ऑल पॉजिटिव्स, ओके, आप पॉजिटिव में लिख सकते हैं 0, +1, +2, +3 एंड +4, एंड ऑल नेगेटिव्स, ऑल नेगेटिव्स में आप उनको बता सकते हैं -1, -2, -3, -4। सी, जब आप एग्जामिनर को एक एक चीज स्मॉल स्मॉल पार्ट्स, ठीक है, इस तरीके से इलेबोरेट करके बताते हैं ना, तो एग्जामिनर पूरा मार्क्स देता है। कभी भी आप ये मत देखिए, लर्न मत कीजिए, कोई पैटर्न को फॉलो मत कीजिए, आप हमेशा अपने ही तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इट विल क्लियर योर माइंड एज वेल एज यू कैन इजिली डिस्क्राइब द एग्जामिनर कि आप उनको क्या बताना चाह रहे हैं, कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आप कभी भी कोई भी पैटर्न को फॉलो मत कीजिए। अब मैंने सिंपली लिखा कि पॉजिटिव ये होते हैं, नेगेटिव ये होते हैं। अगर आपको ये भी नहीं लिखना तो आप एग्जामिनर को बता सकते हो इस तरीके से नंबर लाइन बना करके कि 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद आप उनको यहाँ दिखाइए 1, 2, 3 एंड 4 से ये दिखाइए नेगेटिव, ठीक है, और साथ में साइन दिखा दीजिए। फिर दिखाइए पॉजिटिव और उसके साथ में भी साइन दिखा दीजिए। टीचर बहुत खुश होता है इन सब चीज़ों से। जितने एग्जामिनर 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको अगर इस तरीके से मतलब वो अगर नई नई चीज़ें दिखाते हैं ना एग्जामिनर को करके, तो एग्जामिनर बहुत खुश होता है। तो आप इस तरीके से भी करके दिखाएंगे तो एग्जामिनर को लगता है कि आपने कोई नई चीज़ करके दिखाई है। आप किसी भी तरह के पैटर्न को फॉलो मत कीजिए कि कौन सा टीचर क्या सिखा रहा है। आप अपने तरीके से देखिए, अगर क्वेश्चन आपको क्लियर है तो आप अपना माइंड लगा के उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अब सिंपली आपने बता दिया कि इंटीजर्स होते हैं ऑल द नेगेटिव्स एंड ऑल द पॉजिटिव्स, इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला सिंपल, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। आपको क्वेश्चन भी जल्दी सॉल्व करना है, तो आपने टीचर को बताया, एग्जामिनर को बताया कि होल नंबर्स जो होते हैं वो 0, 1, 2, 3, 4 होते हैं। इससे एंड सो ऑन, आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं सो ऑन। तो इससे लगता है कि बच्चे को पता है कि आगे भी सीरीज जाती है इसकी। अब उसके बाद उसने सिंपली 1 नंबर का क्वेश्चन है पूछा कि भाई ये एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, तो आप लिखेंगे फॉल्स। वो इसलिए लिखेंगे क्योंकि होल नंबर नेवर कम्स इन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि होल नंबर के अंदर नेगेटिव नंबर्स नहीं आते। आप सिंपली लिखेंगे होल नंबर नेवर एंड एवर कंसिस्ट नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव नंबर्स, ये भी लिख सकते हैं नेगेटिव डिजिट, नेगेटिव नंबर्स आपके होल नंबर्स में आते ही नहीं है, कंसिस्ट नहीं करते हैं, इसीलिए आपका बेसिकली जो इंटीजर्स हैं वो होल नंबर नहीं हो सकता, लेकिन होल नंबर इंटीजर जरूर हो सकता है, राइट, होल नंबर इंटीजर जरूर हो सकता है। तो आई होप ये आपके क्वेश्चंस जो हैं एक्सरसाइज 1.1 के ये क्लियर हो गए हैं। आपको अगर वैदिक मैथ सीखना है तो आप मेरी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन अलॉन्ग विद दी क्वेश्चन जितनी भी अगर कुछ हार्ड डिजिट्स आएंगी और मुझे लगेगा तो मैं आपको इसी मैथ्स के साथ साथ वैदिक मैथ्स भी आपको मैं सिखाती हुई जाऊंगी, क्योंकि 9th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स मैंने पढ़ाए हैं और 9th क्लास के बच्चों की 10th स्टैंडर्ड के बच्चों की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये सारे वैदिक मैथ्स ही सीख रहे हैं जो आज की डेट में मैंने वीडियोज अभी डाली हैं। और भी बहुत सारी हैं अभी आपके कॉन्सेप्ट्स जो वैदिक मैथ्स के मेरे रहते हैं, अभी मैं जिनकी वीडियोस बना रही हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें। कोई भी आपको रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर आपके एग्जाम्स आ गए हैं और आपको कुछ पूछना है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं आपके हर क्वेश्चन मंजीत सिंह या आर डी शर्मा का क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दूंगी। और अगर आपको लगता है कि आप मेरे चैनल को फॉलो करके आगे आने वाली सारी वीडियोस देखना पसंद करते हैं इसी नंबर सिस्टम के ऊपर या फिर और जो मैथ्स के कंसेप्ट हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।